بندہ جو ہے 60 سال نماز پڑھا، 60 سال نماز پڑھ کے اللہ کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ویسے بندے سے کہا کہ کیا ہے تو نے نمازیں نہیں پڑھی. کیا مطلب ہے اس کا؟ 60 سال نماز پڑھ کے ہماری زندگی بھر کیا ہے؟ 60 سال نہیں ہے ہماری زندگی، اتنی بڑی نہیں ہے ہماری. تو ذرا سوچئے 60 سال نماز پڑھنے کے باوجود بھی اس کی نماز اس کے منہ پر دے کر ماری جائے گی تو اس میں کیا وجہ تھی؟ کئی کے واسطے ایسا ہوا کیونکہ اس کی نماز سکون کی نماز نہیں تھی. جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے ویسی نمازیں اس نے نہیں پڑھی تھی. امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو امام صاحب کو چاہیے کہ آمین کہیں. امام صاحب بھی ایسا بنائیں آپ لوگ جو آمین کہنے والے ہوں، جو آمین کہنے والے ہوں. آمین تو یہاں پر آمین، ہماری آمین اور فرشتوں کی آمین اگر ٹکرائے گی تو اس انسان کے جو ہے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں پورے کے پورے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. محترم حضرات، معزز سامعین اکرام، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آئیے سب سے پہلے ہم اس اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے ساری کائنات کا وجود بخشا اور ہمیں جو ہے اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے. اس پر ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. اس کے بعد تمام انبیاء پر درود و سلامتی ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آئیے درود مسنا پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے میرا خطاب ہوگا تو صرف نماز کے تعلق سے جو ہے خطاب الحمدللہ حافظ صفی الرحمن عمری نے بتایا آپ کے سامنے جو ہے نماز کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے تعلق سے جو ہے وہ بہت سارے باتیں بتا چکے ہیں الحمدللہ. مجھے جو عنوان دیا گیا ہے نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کے ارکان، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں کیا کیا ہیں، اس کے بارے میں مجھے کیا ہے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. انشاءاللہ اسی کے تعلق سے جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے کچھ باتیں وضاحت کروں گا، کچھ باتیں بتاؤں گا. جیسا کہ کیا ہے ان کو کرنے کی وجہ سے جو ہے، ان کو چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہوگا، ان کو کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا، اس کے تعلق سے کیا ہے کچھ باتیں رکھوں گا. سب سے پہلے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی، صلو کما رأیتمونی اصلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے تم نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھایا
वैसे साहबा इकराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। ये सही बुखारी की हदीस है। ज़रा सोचो मेरे भाइयों, हम और आप सबसे पहले जो है नमाज के लिए शर्त क्या है, शरायत क्या क्या है नमाज के ताल्लुक से। नमाज के शरायत अगर हमसे बिला उज़्र, बगैर कोई उज़्र के हमसे छूट रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी नमाज जो है बातिल हो सकती है, नमाज बातिल हो जाएगी बगैर उज़्र के अगर हम उन शरायत को छोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले उज़्र जो है नमाज किन चीज़ों से, नमाज की शर्तों में से पहली शर्त जो है बदन का साफ होना, यानी हमारे पूरे जिस्म का जो है पाक साफ होना, ये ज़रूरी है इंसान के लिए। तो अक्सर लोगों को देखा जाता है कि क्या है, बदन साफ नहीं होता, कपड़े पाक साफ नहीं रहते, तो ऐसे ही क्या है गंदे कपड़ों में हो या बदन जो है बगैर पाक के ऐसे ही नमाज के लिए चले आते हैं, जिसकी वजह से हमारी नमाज बातिल हो जाती है बगैर कोई उज़्र। यानी अगर बीमारी की हालत में हैं, अगर हम गुस्ल नहीं कर सकते, अगर हम क्या है जिस्म को पाक साफ नहीं कर सकते, तो वैसी हालत में क्या है वैसे ही पढ़ लेंगे तो वो जायज़ हो जाएगी। अगर बगैर किसी उज़्र के, बगैर कोई क्या है वजह के, अगर हम क्या है वैसे ही बगैर क्या है बदन को पाक साफ न करके आ रहे हैं मस्जिद को वगैरह, तो हमारी नमाज जो है बातिल हो जाएगी, हमारी नमाज नाक़िस हो जाएगी बदन को पाक व साफ ना रखने की वजह से। और दूसरा जो है कपड़े पाक साफ रहना, उसी में या पहली शर्त है बदन का पाक साफ होना, कपड़े का पाक साफ होना और जगह का पाक साफ होना जहां पर आप नमाज पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप नमाज जहां पर पढ़ रहे हैं उसका भी पाक साफ होना बेहद जरूरी है। ये तीनों चीजों का, किसी के कपड़े पाक साफ नहीं है, किसी का बदन पाक साफ नहीं है, जहां पर हम नमाजें पढ़ रहे हैं वहां जगह पाक साफ नहीं है, तो वैसी जगह हमारी नमाजें नहीं होंगी, वैसी जगह हमारी नमाजें नहीं होंगी। इसका खास ख्याल रखें और क्या है इन खास ख्याल रखते हुए इनको क्या है पाबंदी के साथ अदा करने की कोशिश करें, जब जाकर हमारी नमाज के लिए ये शर्त है। नमाज के लिए ये शरायत में से पहली शर्त बदन का पाक साफ होना, जिस्म कपड़े का पाक साफ होना और उसके साथ साथ क्या है जहां पर हम नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक साफ होना। ये तीन शर्तें पहले इसमें आ जाती हैं। तो उसके बाद दूसरी वजह जो है कैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान। क्या है पाकी सफाई आधा ईमान है। पाक साफ जो है रहना आधा ईमान दिया गया है, पाकी सफाई को आधा ईमान करार दिया गया है। जरा सोच कर देखें हम और आप, हम में से अक्सर लोग जो है इसमें कोताही बरतते रहते हैं, इसमें अक्सर जो है हमारे से खामियां इसमें निकलती हैं, हमारी अक्सर खामियां इसमें निकलती रहती हैं। जरा सोच कर देखें हम और आप, क्योंकि आधा ईमान इसी को दिया गया है, पाक साफ रहना, बदन का पाक साफ होना, कपड़े का पाक साफ होना और जगह का पाक साफ होना। जब इसी को आधा ईमान दिया गया है तो हमें चाहिए कि हम और आप इसका खास ख्याल रखें और इसमें क्या है इसको क्या है पाक साफ रखने की कोशिश करें, जगह को भी पाक साफ देखें। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि गंदगी में क्या है नमाज पढ़ने लग जाते हैं, जहां पर क्या है बहुत सारी गंदगी होती है, जैसा कि गोबर है या नहीं तो क्या है कुछ गंदगी है, वैसे जगह ही नमाज पढ़ने ठहर जाते हैं। मेरे भाइयों देखना अच्छी तरह ये जगह पाक साफ है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है पूरे लोगों को, हमारे मुसलमानों के लिए सारी जमीन को अल्लाह ताला ने पाक बनाया है, सारी जमीन को पाक बनाया है। जहां पर भी आप चाहें वहां पर पाक साफ जगह में आप नमाज पढ़ सकते हैं। वक्त हो गया तो वहां पर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया, लेकिन हम उसका ख्याल नहीं करते, अक्सर काम के बिजी होने की वजह से नमाजों को छोड़ देते हैं। ये पहली शर्त है मेरे भाई, इसका खास ख्याल रखें। और इसी तरह से दूसरी शर्त, यानी नमाज के शरायत में से दूसरी शर्त जो है बावजू होना, यानी वजू करना। जैसा कि मौलाना सफ़ीउर रहमान ने बताया आपके सामने, नमाज की फजीलत के ताल्लुक से उन्होंने
बताया उसी में ये क्या है, बावजू होना बेहद जरूरी है। क्योंकि अक्सर हमसे ये कोताही होती रहती है। बावजू रहना बोले तो वजू के साथ रहना, वजू शर्त है नमाज के लिए, वजू शर्त है। अगर हमें कोई उज्र नहीं है, अगर हमें कोई बीमारी नहीं है, कोई भी क्या है हमें मुसीबत यानी कोई भी क्या है परेशानी, क्या है बीमारी की परेशानी नहीं है, वैसी हालत में अगर हम क्या है बगैर किसी उज्र के बगैर वजू बनाए नमाज पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए जायज नहीं है। यानी उज्र रहना उसके लिए, बीमारी ये एक उज्र है मेरे भाई, सख्त बीमारी है, बीमारी की हालत में हम उठ नहीं सकते, हम बैठ नहीं सकते, यानी वजू नहीं बना सकते, ठंडे पानी से या गर्म पानी से वजू बनाने की भी ताकत नहीं है, तो वैसी हालत में बगैर वजू के नमाज पढ़ सकते हैं, बगैर वजू के नमाज पढ़ सकते हैं। यानी तयम्मुम का भी एक हुक्म है, तयम्मुम का भी एक हुक्म है। यानी वैसी हालत में तयम्मुम करना चाह रहे हैं, तयम्मुम हो सकता है आपका, तो तयम्मुम के साथ आप नमाज पढ़ सकते हैं। यानी तयम्मुम भी आपसे नहीं हो रहा, उतनी सख्त बीमारी की हालत में आप यानी बेड पर लेटे हुए हैं, तो आपको क्या है उठने की भी ताकत नहीं है, तो बगैर वजू के आप नमाज पढ़ सकते हैं, बगैर वजू के। इतनी सहूलत है इस्लाम के अंदर, लेकिन हम करना नहीं चाहते। क्या है, हमारे पास कोई उज्र नहीं रहता, यानी कारोबार में रहते हैं या दुकानों में रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं, तो वैसे जगह भी हम क्या है बहाना बनाने लगते हैं। हमसे हो रही गलतियां, लेकिन हमें सुधार लेने की जरूरत है। यानी बावजू होना बेहद जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मन तवज़्ज़ा फअहसन अलवुज़ू खरजत खतायाहु मिन जसदिही हत्ता तखरुजु मिन तहत अज़फारिही। सही मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो वजू करे और अच्छी तरह वजू करे, जो वजू बनाए और अच्छी तरह वजू बनाए, खरजत खतायाहु मिन जसदिही, अल्लाह ताला उसके जिस्म के सारे गुनाहों को, यहां तक कि अल्लाह ताला जो है उसके नाखूनों के नीचे से, उसके नाखूनों के नीचे से भी अल्लाह ताला उसके गुनाहों को झड़ा देता है, माफ कर देता है। इतनी बड़ी फजीलत है वजू करने की। तो जरा सोचे मेरे भाइयों, ये वजू के लिए, ये नमाज के लिए दूसरी शर्त है, बावजू होना, बावजू होना दूसरी शर्त है। और वजू करने के बाद दुआओं का भी एहतमाम करना है, क्योंकि जो बंदा वजू के बाद दुआओं की पाबंदी करता है, दुआओं का एहतमाम करता है, अल्लाह ताला जो है उसके सारे गुनाहों को बख्श देता है, सारे गुनाहों को माफ कर देता है। जरा इसका भी हमें और आपको ख्याल करना है। ऐसे ही वजू बनाने के बाद सीधा डायरेक्ट मस्जिद में गए या एहतमाम नहीं किए, तो हमें सीख लेना है। क्योंकि जैसा कि हम और आप दुनिया के मामले में लीजिए, दुनिया के मामले में हम और आप हर चीज के बारे में ख्याल करते रहते हैं, हर चीज के बारे में सोचते रहते हैं। एक मामूली मामूली छोटी घर चलाने के लिए कोई तरकारी हो, यानी तो कोई किराने का माल हो, या कुछ क्या है लाने के लिए, खाने के लिए कुछ पकाना हो, तो उसके बारे में ख्याल करते रहते हैं। यानी 10-20 रुपए के टमाटे हो, आलू हो, बैगन हो या कुछ भी हो, उनमें हमारा ख्याल रहता है। क्या है, 10 रुपए के बारे में सोचते रहते हैं, ये खराब है, अच्छा है, बुरा है, सब सोचते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर वजू बनाना, वजू के बाद की दुआओं का एहतमाम हम और आप नहीं करते, ख्याल नहीं रखते। तो इसीलिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम उसका खास ख्याल रखें। वजू जैसा हो हमारा, वैसे ही वजू के बाद दुआओं का एहतमाम भी हमें करना चाहिए, क्योंकि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। लेकिन बहुत सारे बहाने बनाते रहते हैं, क्या करना मौलाना, हमारे क्या है, हमको क्या है पढ़ना नहीं आता, हमको लिखना नहीं आता, हमें ऐसा है वैसा है। सीखना है आपको, जैसा आप हर एक के बारे में सीखते हैं, हर एक के बारे में ख्याल करते हैं, तो वैसा ही हमें सीखना चाहिए। ये दूसरी वजह, नमाज के शराइत में से दूसरी वजह। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी व मुस्लिम की हदीस है, ला तुक़बलु सलातुन बिगैर तुहूरिन। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी व मुस्लिम की हदीस, वजू के बगैर कोई भी नमाज काबिल कबूल नहीं है, बगैर वजू के कोई नमाज काबिल कबूल नहीं है। लेकिन बगैर उज़्र के, अगर उज़्र है आपके साथ,
उज्र है आपके पास, अगर आप बेड पर हैं तो वैसी हालत में आप नमाज बगैर वजू के पढ़ सकते हैं, लेकिन उज्र के बगैर आप नमाज, वजू के बगैर नमाज नहीं पढ़ना है आपको। बगैर वजू के नमाज ही हमारी नहीं होती। और तीसरी नमाज की शराइत में से तीसरी शर्त, सतर को छुपाना। सतर को छुपाना बोले तो हमारे में क्या है, बहुत सारे लोग जो है मर्द हजरात के लिए, यानी कंधे से लेकर यानी गुड़गे के नीचे तक ये मर्द का सतर होता है। कंधे से लेकर यानी सतर तक, या ऐसा ये घुटने के नीचे तक जो है मर्द का सतर होता है, उसे छुपाना जरूरी है मर्द के लिए। मर्द के लिए इसे ये छुपाना जरूरी है। और एक जगह क्या है, बोम्बी से लेकर गुड़गे के नीचे तक सतर को छुपाना जरूरी है मर्द के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें जो है बहुत सारे चीज़ें हमारे पास मुहैया हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए मेरे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मालदार बनाया है। तो पूरा इंसान जो है पूरा कंधे से लेकर पूरा नीचे तक जो है, यानी घुटने के नीचे तक इंसान को क्या है, मर्द हजरात को अपने सतर को छुपाना है, अपने सतर को छुपाना है। इसका खास ख्याल रखना, इसका खास ख्याल रखना। और औरतों के लिए यानी पूरा सर से लेकर पूरा पैरों तक पूरा औरत छुपी हुई रहना। और नमाज की हालत में जो है औरत अपने चेहरे को और अपने हाथों को खुली रख सकती है, अपने चेहरे को और अपने हथेलियों को खुली रख सकती हैं। अगर वहां पर गैर मुहरिम नहीं है तो वैसी हालत में, अगर आप पर्दे के एहतमाम में हैं, पर्दे का इंतज़ाम है आपको, तो वैसी हालत में अपने चेहरे को और अपने हथेलियों को खुली रखेंगी ख़वातीन इस्लाम। तो इसका ख़ास ख्याल रखें। ये तीसरी शर्त। और चौथी शर्त नमाज का वक्त होना। नमाज का वक्त होना ये भी एक शर्त है, नमाज का वक्त होना, क्योंकि बगैर नमाज के वक्त के हम और आप नमाज नहीं पढ़ सकते। जैसा कि फजर का मामला है, ज़ुहर का मामला है, असर का मामला है, मगरिब का मामला है, और इसी तरह इशा का मामला है। हम और आप देखते रहते हैं कि फजर में हमें और आपको सहरी करने के वक्त, रमज़ान के वक्त, यानी जैसा ही अज़ा हो जाती है तो हम खाना पीना छोड़ देते हैं। यानी उससे पहले क्या है, अज़ा नहीं होने से पहले हम और आप नमाज नहीं पढ़ते, क्योंकि हम पर क्या है, उस वक्त नमाज नहीं है। यानी रात में तहज्जुद वगैरह पाबंदी कर सकते हैं हम और आप, अज़ा से पहले तहज्जुद वगैरह की पाबंदी हमारे पास होती रहती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेते हैं। लेकिन वक्त का होना ज़रूरी है, वक्त का होना ज़रूरी है। बगैर वक्त के, यानी फजर की नमाज के बाद जब तक ज़ोहर का वक्त नहीं हो जाता, 12, 12:30, 12:15 के बाद शुरू हो रहा है ज़ोहर का वक्त, वहाँ से ज़ोहर के वक्त का क्या है, नमाज का वक्त शुरू हो रहा है, तो वहाँ से हमारी नमाज ज़ोहर शुरू हो रही है। तो वक्त का होना बेहद ज़रूरी है। बगैर वक्त के हम और आप नमाज नहीं पढ़ सकते, बगैर वक्त के हम और आप नहीं नमाज पढ़ सकते। क्योंकि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युल अमाली अहब्बु इलल्लाह, यानी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या है ज्यादा अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमाल कौन से हैं, यानी अल्लाह के पास सबसे पसंदीदा अमाल कौन से हैं? तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क़ाल सलातु अला वक्तिहा, यानी वक्त पर नमाज का अदा करना, यानी नमाजों को वक्त पर, उसके वक्त पर अदा करना। यानी फजर का वक्त है तो फजर के वक्त नमाज का अदा करना, ज़ोहर का वक्त है, ज़ोहर के वक्त पर उसे पाबंदी के साथ अदा करना। अक्सर हमारे पास ये मामला देखा जाता है, कारोबार की वजह से या बिजनेस की वजह से हम क्या है, अपने नमाज के वक्त को कज़ा कर लेते हैं, बाद में पढ़ लेते हैं, बाद में अदा कर लेते हैं। ये मुनासिब नहीं है मेरे भाई, ये कभी कभार चलता है, लेकिन हमेशा इस तरह से क्या है, अपनी आदत बना लेना, ये क्या है,
जायज़ नहीं है हमारे लिए। इसका खास ख्याल रखें और वक्त पर जो है नमाजों की पाबंदी करने की कोशिश की जाए, वक्त पर नमाजों को पढ़ने की कोशिश की जाए। और नमाज के शराइत में से 5वीं शर्त जो है किबला रुख होना, किबला रुख होना, यानी बगैर किबले के हम और आप इधर उधर उधर बगैर किबले के नमाज नहीं अदा कर सकते। क्योंकि जब हम और आप यानी सवारी पर हैं, यानी तो क्या है सफर में जा रहे हैं ट्रेनों में वगैरह या बस वगैरह, तो हमें पता नहीं चल रहा है किधर किबला है हमारा, तो वैसी हालत में जिधर चाहे वैसे नमाज पढ़ ले सकते हैं। सफर की हालत में जहां पर आपको पता ही नहीं चल रहा किधर किबला है, आपको मालूम ही नहीं है, वैसी हालत में जिधर आपका रुख है उधर ही नमाज पढ़ लेंगे, वैसी हालत में जायज है। लेकिन आप क्या है अपने गांव में हैं, आपको मालूम है किबला इधर है, यानी किबला जो है किबला रुख इधर है हमारा, मगरिब की तरफ किबला हो रहा है, तो उधर ही आपको नमाज अदा करना है। मगरिब छोड़कर आप जो है मशरिक की तरफ आप ठहरे हैं तो ये मनमानी होगा, आपकी नमाज नहीं होगी। यानी नमाज के शर्तों में से है। यानी तो क्या है आप जुनूब और शिमाल की तरफ मुंह कर मैं नमाज पढ़ता हूं बोले तो आपकी नमाज नहीं होगी, ये हमारा तरीका नहीं चलेगा। क्योंकि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाती है तो वहां पर मेरा तेरा किसी का नहीं चलेगा, न मेरा चलेगा, न मेरे बाप की चलेगी, न मेरे दादा की चलेगी, न किसी की चलेगी। यानी सिर्फ चलेगी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात चलेगी, इसका खास ख्याल रखें। और इसी तरह से 6ठी शर्त जो है दिल में नमाज की नीयत करना, दिल में नमाज की नीयत करना। जैसा कि मौलाना ने बताया कि क्या है जैसा ही ज़ोहर का वक्त हो जाता है हम घर से निकलते हैं वही हमारी नीयत है। यानी हमें मालूम है किस नमाज के लिए जाना है, फजर की नमाज के लिए जाना है तो हमें मालूम है, ज़ोहर की नमाज के लिए हम निकल रहे हैं तो हमें मालूम है, वहाँ अलग से नीयत करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि नीयत के अल्फाज बोलते रहते हैं, यानी कुछ ज़बान से बोलते हैं मैं अल्लाह के वास्ते इतने रकात पढ़ रहा हूँ, इतने क्या है मैं 4 रकात पढ़ रहा हूँ, 3 रकात पढ़ रहा हूँ, 2 रकात पढ़ रहा हूँ, ऐसे बोलकर नमाज के लिए ठहरते हैं। ये जायज़ नहीं है, ये हमारी तरफ से बनाई हुई नीयतें हैं, हमारी तरफ से बनाई हुई लिखी हुई हमारी तरफ से ये बातें हैं, मन गढ़ंत बातें। तो इसका खास ख्याल रखें क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है, आमाल का दारो मदार पूरा नीयतों पर है। जैसा आपकी नीयत होगी वैसा अल्लाह ताला आपको अजर देगा, वैसा आपकी नमाजों को अल्लाह ताला कबूल करेगा। यानी आप जैसा ही ज़ोहर के वक्त हो या फजर की नमाज का वक्त हो, आप यहाँ से निकल रहे हैं तो वही आपकी नमाज की नीयत होगी, वही आपकी नमाज की नीयत होगी। इसी तरह से बहुत सारी नीयत है हमारे पास, गुस्ल की नीयत है, बहुत सारे क्या है रोज़ों के वक्त नीयतें करते रहते हैं, रोज़ा छोड़ने की नीयत अलग है, दस्तरखान बिछाने की नीयत अलग है, बहुत सारी नीयतें हैं हमारे पास। कहाँ से लाते हैं अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है इसके बारे में। ज़रा सोचो मेरे भाइयों, यहाँ पर हमारी नीयतें नहीं चलेंगी क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान जो है अरबी ज़बान है, अरबी ज़बान है। वहाँ पर आप जाकर देखें, उम्रे हज वगैरह जाकर देखें काबतुल्लाह के पास, वहाँ के ना इमाम साहब नियत करते हैं ना वहाँ के मुहद्दिस नियत करते हैं, कोई भी वहाँ पर नियत नहीं बांधते, कोई भी नियत ज़बान से नहीं बोलते। वहाँ पर सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में या कहीं भी दूसरे मुल्क में वहाँ पर क्या है नियत क्या है अपने अपने ज़बान में कर लेते हैं लोग, ये अपनी तरफ से बनाई हुई नियतें हैं मेरे भाइयों। इसका ख़ास ख्याल रखें क्योंकि आपके दिल में जो नीयत चल रही है वैसे अल्लाह ताला नीयतों को जानने वाला है, क्योंकि इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह ताला दिलों के भेद को जानने वाला है। हमारे दिल में क्या चल रहा है अल्लाह ताला को मालूम है, इसका खास ख्याल रखें। और नीयत जो है आप यहाँ से निकलना, ज़ोहर की नमाज को निकल रहे हैं वही आपकी नीयत है। आप रोज़ा रख रहे हैं, रात में नीयत बनाकर जो नीयत आपकी रहती है यानी अलार्म रख कर आप जो सो रहे हैं वही आपकी नीयत है।
फजर में उठने की नीयत से आप सो रहे हैं अलार्म रखकर, वही आपकी नीयत होगी रोजे की, उसका खास ख्याल रखें। और क्या है, ये 6 चीजें क्या है, नमाज की शरायत में से है, इसका खास ख्याल रखें। और 7वीं चीज यानी मुसलमान होना, मुसलमान है तो उसके लिए क्या है, ये नमाज की शरायत वगैरह है, मुसलमान होना बेहद जरूरी है। अगर बगैर मुस्लिम है, मुसलमान कलमा नहीं पढ़ा है, वैसे के लिए तमाम शरायत जायज नहीं है, उनके लिए शरायत नहीं होंगी। और इसी तरह से 8वीं चीज जो है बालिग होना, यानी छोटे बच्चों पर नमाज फर्ज नहीं है, छोटे बच्चों पर नमाज फर्ज नहीं है। जब बालिग हो जाता है बच्चा या बच्ची, उस पर नमाज फर्ज है, तो वैसी हालत में क्या है, उसका बालिग होना भी जरूरी है, तो इसका भी खास ख्याल रखें। और उसी तरह से 9वीं चीज अक्लमंद होना, यानी इंसान होश में रहना, यानी पूरे सोच बोझ उसे समझ में आते रहना, यानी बेहोशी के हालत में है, बेहोशी के हालत में है, तो वैसे इंसान के लिए क्या है, नमाज की शरायत उसके लिए जायज नहीं है, नमाज फर्ज नहीं है उस पर, तो इसका भी खास ख्याल रखें, इसकी भी क्या है, हमें जरूरत है, क्योंकि ये अबू दाऊद की हदीस है। यानी मुसलमान होना, बालिग होना और अक्लमंद होना, बेहोशी के हालत में नमाज आप पर, नमाज के लिए नमाज फर्ज नहीं है, नमाज की शरायत भी आपके लिए जायज नहीं है, इसका खास ख्याल रखें। ये चंद बातें थी जो मैंने आप लोगों के सामने नमाज के शरायत के ताल्लुक से रखी हैं, इसका खास ख्याल रखें। और इसी तरह से हम और आप देखते हैं कि नमाज पढ़ते हैं हम और आप, नमाज के अरकान क्या क्या हैं, नमाज के रुकन क्या क्या हैं। जिस तरह इस्लाम के रुकन है 5, जिस तरह इस्लाम के 5 रुकन हैं, अगर एक भी रुकन आप छोड़ रहे हैं तो हमारे इस्लाम से हम और आप खारिज हैं, नमाज यानी इस्लाम से बाहर हैं। वैसे अगर हमसे कोई रुकन छूट रहा है, जानबूझकर छोड़ें या आप ऐसे ही छोड़ रहे हैं, जानबूझकर छोड़ रहे हैं या ऐसे ही छोड़ रहे हैं, तो तब भी आपको क्या है, वो नमाज दोहरा कर सजदे सहू करना है, सजदे सहू करना है। हम और आपको नमाज दोहराना भी है और सजदे सहू भी करना है, इसका खास ख्याल रखें। आइए, नमाज के 14 अरकान है, नमाज के 14 अरकान है, 1 नहीं 2 नहीं 14 अरकान है। अगर 14 अरकान में से एक भी रुकन हमसे छूट रहा है तो हमारी नमाज बातिल हो जाएगी, हमारी नमाज बातिल हो जाएगी, इसका खास ख्याल रखें। सबसे पहले क़ियाम करना, क़ियाम करना यानी सीधे खड़े होना, हम और आप सीधे खड़े होना। अक्सर हम और आप देखते हैं कि नमाज क्या है, चंद लोगों को बगैर किसी उज़्र के कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ती, बगैर किसी उज़्र के, कोई भी उज़्र नहीं रहता, कोई भी वजह नहीं रहती, बगैर उज़्र के क्या करती, यहां पर क़ियाम करना, ये नमाज का शर्त, नमाज के लिए नमाज के रुकन में से एक रुकन है ये। लेकिन अक्सर इसमें क्या है, या तो कुर्सी पर बैठ जाती हैं या नहीं तो क्या है, नीचे बैठकर नमाज पढ़ने लगती हैं हम और आप। कोई भी हमारे पास उज़्र नहीं रहता, वजह नहीं रहती कोई भी छोड़ने की, तो इसका खास ख्याल रखें। क्योंकि अक्सर लोग जो है बाहर कोई कारोबार हो या बाजारों को जाने का हो या बकरियां चराना हो, हमारे माहौल के हिसाब से बकरियां चराना हो या जानवरों को चराना हो या खेत में कारोबार करना हो, खेत में पानी पिलाना हो, तो वैसी हालत में क्या है, पूरा काम कर लेती, घर का काम भी कर लेती, हम लोग आप लोग ठहर कर करती। लेकिन यहाँ नमाज का मसला आता है तो वहां पर अक्सर लोग जो है क़ियाम करने के बजाय बैठकर नमाज पढ़ते। ये कहाँ का बहाना है, किसे धोखा दे रहे हैं आप लोग, मौलाना को धोखा दे रहे हैं, सिर्फ मौलाना के सामने मौलाना को धोखा दे रहे हैं, अल्लाह को धोखा दे रहे हैं आप लोग, सिर्फ अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। मौलाना तो आपको देख रहे हैं, क्या रे ये बंदा जाको क्या है, पूरा कारोबार करते, खेत में पानी पिलाते, सब करते, मौलाना हंसते आप पर, मौलाना को मालूम है आपकी बातें, मौलाना देख कर कहती देख ही नहीं, घंटों से ठहरते, कौन सा तो पैसे आने का रहा तो 1 घंटा की 2 घंटे जाकर ठहरती। जैसा कि हमें और आपको मालूम है 2-2 हजार रुपए हमारे अकाउंट में पड़ रहे हैं, महिला क्या है गृह लक्ष्मी बोल के 2-2 हजार आपके अकाउंट में पड़ रहे हैं, तो 2 हजार लेने के लिए आप घंटों से लाइन लगाएंगे, घंटों से आप वहां पर जाकर ठहरेंगे, वहां पर पैर नहीं दुखते। जैसा ही नमाज का मसला आते बैठकर पढ़ने की कोशिश करती वहां पर,
हो रहा नहीं हमारे पास, बहाने बनाती हैं। अल्लाह को धोखा दे रहे हैं आप लोग। अल्लाह आपको देख रहे हैं, अल्लाह आपको देख रहे हैं। सिर्फ गुमान रहना, हमारी सोच अच्छी रहना। हमें क्या है, पूरा इतना फिरतिन दो बा, यहाँ क्या है, क़ियाम करना एक रुकन है, इसका खास ख्याल रखें, इसका खास ख्याल रखें। ताकत है तो ठहर कर पढ़ने की कोशिश करें। अगर ताकत नहीं है आपके पास, मजबूर हैं, आपके पास कोई उज्र है, बीमारी की हालत में है, आपके पैर में ठहरने की ताकत नहीं है, वैसे जगह आप बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। वैसे जगह नमाज बैठकर अदा कर सकते हैं। तो बहाना क्या है, मौलाना के पास चलेगा आपका बहाना, अल्लाह के पास आपका बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। ये नमाज के रुकन में से एक रुकन है, इसे खास ख्याल रखें इसका। और दूसरा रुकन जो है तकबीर तहरीमा कहना, यानी तकबीर तहरीमा कहते हैं अल्लाहु अकबर। जब इमाम साहब बोलती हैं तो आप भी बोलना, इमाम साहब जब बोलती हैं तो आपका भी क्या है, बोलना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है, इमाम साहब अल्लाह अकबर बोले, आप चुप है, हाथ उठा के मुंह भी खोलते नहीं, आपकी नमाज नहीं होती, आपकी नमाज नहीं होती। क्यों बोले तो तकबीर तहरीमा एक रुकन है, तकबीर तहरीमा एक रुकन है। अल्लाहु अकबर तमाम को बोलना है, इमाम साहब को भी बोलना है, मुक्तदियों को भी बोलना है, पीछे मुसल्लियों को भी बोलना है। अल्लाहु अकबर बोलना, तमाम को बोलना है। ये एक रुकन है, क्योंकि तकबीर तहरीमा कहते हैं अल्लाहु अकबर बोले तो हाथ भांती, जो आप हाथ भांती तो उसके बाद जितने चीजें हाथ बांधने से पहले थी, यानी नमाज, यानी खाना पीना हलाल था, हंसना हलाल था, बात करना हलाल था, हर चीज हलाल थी आपकी नमाज से, अल्लाह अकबर बोलने से पहले। जैसा ही अल्लाह अकबर बोल के हाथ बांधते हैं तो आपका हलाल चीजें, जितने भी हलाल चीजें थी वो हराम हो जाती। इसका मतलब यही है, तकबीर तहरीमा का मतलब यही है, जितने चीजें नमाज से पहले, हाथ बांधने से पहले हलाल थी, वो जैसे ही अल्लाह अकबर बोल के हाथ बांधती वो तमाम की तमाम हराम हो जाती आप। तो इसका खास ख्याल रखें। और तमाम जो है तकबीर तहरीमा बोलना, अल्लाहु अकबर, तमाम हाथ बांधने से पहले इसे अदा करना, बोलना, यानी तो हाथ उठाने से पहले बोले या क्या है, हाथ बांधकर बोले अल्लाहु अकबर। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके जायज हैं, दोनों में से क्या है, ये करें, आप अदा करें इंशाल्लाह। तकबीर तहरीमा तमाम बोलना। और इसी तरह से हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना, तीसरा रुकन जो है, हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना। तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इल्म भी नहीं है, सूरह फातिहा पढ़ना। इमाम साहब पढ़ रहे हैं, चुप जाको हाथ बनती है, मैं पीछे, बहुत जने के पास ये आदत होती, यानी इमाम साहब के पीछे रहे तो हमारी नमाज हो जाती। नहीं मेरे माएँ और बहनें, मोहतरम हजरात, हर एक रकात में, चाहे आप नफिल पढ़ो, सुन्नत पढ़ो, फर्ज पढ़ो, कोई भी नमाज पढ़ो, हर एक रकात में सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, उस शख्स की कोई नमाज नहीं होगी जिसने सूरह फातिहा को नहीं पढ़ा। सूरह फातिहा को नहीं पढ़ने से किसी की नमाज नहीं होगी। सूरह फातिहा का अदा करना हर एक पर जरूरी है, हर एक अदा करना, चाहे इमाम साहब हो या मुक्तदी हो। इमाम साहब जोर से पढ़ रहे हैं, फजर में जोर से पढ़ रहे हैं, मगरिब में जोर से पढ़ रहे हैं, इशा में जोर से पढ़ रहे हैं, आप दिल में आहिस्ता पढ़ेंगे, पीछे मुक्तदी आहिस्ता पढ़ेंगे। इमाम साहब जोहर में आहिस्ता पढ़ रहे हैं, असर में आहिस्ता पढ़ रहे हैं, आप भी क्या है, आहिस्ता आहिस्ता उसे क्या है, पढ़ेंगे। जोहर और असर में आहिस्ता पढ़ेंगे, जोर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका खास ख्याल रखें, ये भी एक रुकन है नमाज का, एक तीसरा रुकन है। और चौथा रुकन रुकू करना। रुकू करना, रुकू करना बोले तो झुकना, गुड़िया को पकड़कर, हाथ क्या है गुड़गों पर रखकर हम और आप झुकते हैं, उसे क्या बोलती है, रुकू करना। रुकू करना, वहां पर क्या है, रुकू करना, ये भी एक रुकन है, ये भी एक रुकन है रुकू करना। यानी रुकू करते वक्त सर और जो है कमर सीधी होना, और निगाह जो है जहां पर हमारा सजदा होगा वहां पर निगाह रहना, वहां पर निगाह रहना।
अक्सर लोगों को देखा जाता है कि क्या है, जैसा ही रुकू हम में जाते हैं तो किसी की क्या है, पीठ उठी हुई रहती है, या किसी का सर ऊंचा रहता है, यानी तो क्या है, बहुत सारे ऐसा रुकू में नीचे देखते रहती हैं, पैरा में देखती हैं, पैरा में क्या तो है, क्या सांप है, क्या बिच्छू है, क्या तो एक देखते रहती। हो रहा नहीं हमारे पास, ये मामला हमारे पास होता रहता है। जहां पर हमारा सजदा हो रहा है वहां पर हमारी निगाह रहना, और पीठ और कमर और क्या है, सर सीधा रहना, यानी करेक्ट रहना। रुकू बोलते हैं, उसे रुकू बोलते हैं। इसीलिए मैं समझा रहा हूं, झुकने को क्या है, रुकू बोलती, क्योंकि आपको मालूम नहीं होता बोल के, अक्सर क्या है मालूमात नहीं रहती, इसीलिए क्या है इसे समझाना बेहद जरूरी है, क्योंकि नमाज के रुकन में से चौथा रुकन है रुकू करना। और पांचवा जो है रुकू से, रुकू में भी दुआएं हैं, वो आगे इंशाल्लाह बाद में आएंगे। और रुकू से सर उठाकर सीधे खड़े होना। बहुत सारे लोगों को हम और आप देखते रहते हैं कि क्या है, इंशाल्लाह प्रैक्टिकल बताएंगे, क्या इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में क्या है बताएंगे आप लोगों को। रुकू से सीधे उठकर क्या है, सीधे खड़े होना, सीधे खड़े होना। वहां पर अक्सर क्या है, सीधे खड़े होने के बजाय समी अल्लाहु लिमन हमीदा, जैसा इमाम साहब कहते हैं, बहुत सारे इमामों के पास भी ये आदत होती, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अभी पीछे उठे भी नहीं रहते मुक्तदिया, पट ने क्या है सजदे में जा छोड़ती। ये आपका रुकन अदा नहीं हुआ, ये आपका रुकन अदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारी नमाज बातिल होगी, हमारी नमाज पूरा नहीं होगी। इसीलिए जैसा ही रुकू से उठते हैं सीधे खड़े होना। जितना देर आपका रुकू हुआ है उतने देर आप ठहरना, उतने देर आप खड़े रहना सीधे। समी अल्लाहु लिमन हमीदा जब बोलते हैं तो मुक्तदियों को भी चाहिए कि आप भी समी अल्लाहु लिमन हमीदा दिल में बोले, उसके बाद आगे क्या है, रब्बना वलकल हम्द, वहां पर पढ़ना है। तो उसके बाद ये पांचवा रुकन है। और छठा रुकन 7 आज़ा पर सजदा करना। 7 आज़ा बोले तो कौन कौन से, पेशानी और नाक, पेशानी और नाक एक आज़ा, पेशानी और नाक एक आज़ा। और उसके बाद दोनों हाथ की हथेलियां, दोनों हाथ की हथेलियां, उसके बाद ये दोनों गुड़गे, दोनों गुड़गे, और उसके बाद दोनों पैरों की उंगलियां, ये पूरा जमीन पर टेकना, जमीन पर लगी हुई रहना। अगर किसी की पेशानी लग रही, नाक नहीं लग रही, अगर यानी तो किसी की नाक लग रही, पेशानी नहीं लग रही, तो हमारी नमाज नहीं होगी, हमारी नमाज नहीं होगी बगैर किसी उज्र के। यानी तो बहुत सारे लोग सवाल करते रहते हैं, मौलाना किसी का हाथ नहीं रहा तो कैसा, किसी का पैर नहीं रहा तो कैसा, की का तो शाने रहती लोग है ने, शाने रहती उन्हें सवाल करती, मौलाना कैसा करना जी, इसका पैर नहीं है, इसका आधा होते नहीं, ये पैर नहीं लगा तो कहती, तो उज्र है, उसके पास वजह है बताने की, तो ऐसी हालत में नमाज हो जाती। अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी उज्र के हमें और आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये छठा रुकन, हमें और आपको क्या है, 7 आज़ा पर जो है सजदा होना हमारा। पेशानी और नाक मिलाकर 1, दोनों हथेलियां 3, और ये दोनों मिलाकर 5, दोनों गुड़गे मिलाकर, और उसके बाद जो है दोनों पैर मिलाकर 7 आज़ा पर मुकम्मल सजदा होना। क्या है, 7 आज़ा पर सजदा होना, इसका खास ख्याल रखें। और इसी तरह से 7वीं चीज, सजदे से उठने के बाद सजदे से सर उठाना, सजदे से सर उठाना, यानी जब हम सजदे से सर उठाकर बैठना, वहां पर बैठना। अक्सर क्या करती हैं, वो सजदा नहीं करते, अभी मुक्तदिया पीछे भी नहीं उठ रहे थे, इन्हों भी नहीं उठते, डायरेक्ट भी सजदे में थे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, होते नहीं हमारे पास। ये मामला भी चल रहा है, ऐसे गड़बड़ की नमाज नहीं चलती, ऐसी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। सजदे से सर उठाकर सीधे बैठना, सजदे से सर उठाकर सीधे बैठना, जब जाकर ये रुकन हमारा अदा होगा, ये रुकन हमारा अदा होगा। वहां पर भी दुआ है, रब्बिक फिरली, यानी तो अल्लाहुम्मा मगफिरली वरहमनी वहदीनी वआफीनी वरजुकनी। 1 मरतबा, 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, जितना आपका रुकू होगा, जितना आपका सजदा होगा, उतनी देर आपको वहां पर बैठना है। सजदे से सर उठाकर सीधे बैठना है। वहां पर बहुत सारे गड़बड़ होती है हमारे में, बहुत सारे गड़बड़े करते हैं, यानी सजदा लंबा हुआ तो यहाँ क्या 1 सेकंड में नहीं बैठते, ऐसा उठे बाद ऐसा बी जाती है, अल्लाह अकबर बोल को, ये नमाज बातिल हो जाएगी आपकी। ये रुकन अदा करना, ये 7वां रुकन। और 8वां रुकन,
दोनों सजदों के दरमियान बैठना, दोनों सजदों के दरमियान बैठना हमें और आपको, सीधा बैठना, ये भी एक रुकन है। सजदे से सर उठाना भी एक रुकन है, और क्या है, दोनों सजदों के दरमियान बैठना भी एक रुकन है। ये आठवां रुकन है। वहां पर दुआ है, उस टाइम दुआ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और 9वीं चीज, आखिरी तशहुद के लिए बैठना, आखिरी तशहुद के लिए बैठना, ये भी एक रुकन है, ये भी एक रुकन है आखिरी तशहुद के लिए। वहां पर क्या है, तहियातु अल्लाहुम्मा सल्ली अला वगैरह हम और आप पढ़ते रहते हैं, इंशाल्लाह वो आगे आएगा। तो उसके बाद 10वीं चीज, 10वां रुकन जो है, आखिरी तशहुद में अत्तहियातु पढ़ना, आखिरी तशहुद में अत्तहियातु पढ़ना। बगैर अत्तहियात के आप वैसा ही उठ रहे हैं तो आपका एक रुकन छूट रहा है, आपका एक रुकन छूट रहा है। अगर आप जानबूझकर छोड़ रहे हैं तो फिर उस नमाज को दोहराना और सजदे सहू कर लेना जरूरी है, सजदे सहू कर लेना जरूरी है। अगर आपको भूल कर आप क्या है उस अत्तहियात को नहीं पढ़े, भूल कर आप नहीं पढ़े, तो क्या है, आपको याद आने पर उस नमाज को दोहराने की जरूरत नहीं, सजदे सहू कर ले तो काफी है, भूल कर पढ़ ले तो इसका खास ख्याल रखें। और 11वीं चीज, 11वां रुकन जो है, आखिरी तशहुद में दरूद पढ़ना, आखिरी तशहुद में दरूद पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसा कि मैंने पहले रुकन जो बताया, वो अत्तहियात, वो भी याद कर लेना हम तमाम को, बहाने नहीं चलते हैं, नहीं आता, नहीं करता, नहीं हमें नहीं सीखे, वो नहीं बहाने चलते, क्योंकि सीखना जरूरी है। ये रुकन है, नमाज का एक रुकन है, इसे अदा करने के लिए आपको याद करना ही करना होगा। और इसी तरह दरूद शरीफ, यानी 11वां रुकन जो है, 11वां रुकन है ये। 11वां रुकन क्या है, आखिरी तशहुद में दरूद पढ़ना, इसे भी याद करना है हमें और आपको। बहुत सारे इसमें बहाने बनाते रहती हैं, नहीं जी हमने यादिज नहीं होता, हमने क्या है ये पढ़नीज नहीं होता, वही क्या है मोबाइल में देख को क्या तो गाने आते हैं, आप लोगों को गाने आती हैं, फिल्म के क्या है डायलॉग बोलने आती हैं, क्या भी क्या है बोलने आती हैं। लेकिन यहाँ पर नमाज का जब आता है, नमाज अदा करने का, तो उस टाइम हमारे बहाने आते हैं, हमारे पास हो रहे नहीं, हमारे पास ये बहाने हमारे पास चल रहे हैं। ये 11वां रुकन यानी दरूद शरीफ पढ़ना, आखिरी तशहुद में दरूद शरीफ पढ़ना। और इसी तरह से 12वां रुकन, 2 सलाम फेरना, ये भी एक रुकन है, 2 सलाम फेरना ये भी एक रुकन है हमारा। सिर्फ क्या है, बगैर सलाम फेरे आपकी नमाज नहीं होगी, बगैर सलाम फेरे आपकी नमाज ही नहीं होगी, ये भी रुकन है, दोनों सलाम फेरना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये भी एक रुकन है। तो इसे भी क्या है अदा करना जरूरी है। और इसी तरह से 13वां रुकन जो है, तमाम अरकान, जितने भी मैं अरकान बताया, इन तमाम अरकान को इत्मीनान से अदा करना, इत्मीनान से अदा करना, इन तमाम रुकन को, जितने भी अरकान हैं इन तमाम अरकान को इत्मीनान से अदा करना, एक एक करके अदा करना, इत्मीनान से, सुकून के साथ, गड़बड़ नहीं। कहाँ तो जाने का हत्ता शादी वगैरह का तो हमें क्या करते हैं, जल्दी जल्दी अदा करते हैं नमाज, पट 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 कहता है, जिस तरह क्या है चुड़िया वगैरह दाना मारती न दाना खाती न वैसे हमारे पास क्या है कौवा चोंच मारा करते तो वैसा करती है हमें नमाज, पट 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 जल्दी पढ़ लग जा छोड़ना। तो ऐसी नमाज अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है, अल्लाह ताला ऐसी नमाजों को कबूल नहीं करता। तो ये नमाज के शराइत हैं, ये नमाज के अरकान हैं, रुकन है ये, तो इसे याद करना बेहद जरूरी है हमारे ऊपर, तमाम अरकान को इत्मीनान से अदा करना। और 14वीं चीज क्या है, 14वां रुकन जो है, तमाम अरकान को तरतीब से अदा करना, तरतीब एक के बाद एक। जैसा पहले क़ियाम करना, क़ियाम से पहले तुम्हें क्या है रुकू में जाता हूँ तो तुम्हारा नमाज नहीं, यानी रुकू से पहले तुम्हें सजदे में जाता हूँ बोले तुम्हारा नमाज नहीं, क्योंकि तुम्हें तरतीब से नहीं अदा कर रहे, तुम्हारी नमाज नहीं होती। क्योंकि मैंने पहले हदीस पढ़ी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम नमाज ऐसे पढ़ो। सहाबा इकराम के सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, तुम नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है, वैसे हमें और आपको नमाज अदा करना है, जब जाकर हमारी नमाजें जो है कबूल होंगी
और काबिल कबूल होंगी और अल्लाह ताला हमारी नमाजों को कबूल अता फरमाएगा। और इसी तरह से आइए, ये ने नमाज के अरकान थे जो मैंने आप लोगों के सामने नमाज के शरायत रख के, नमाज के अरकान रख के, आइए आप क्या है नमाज के वाजिबात बताता हूँ। नमाज के वाजिबात ये भी बताता हूँ। सबसे पहले वाजिबात में से सबसे पहले जो है तकबीर तहरीमा के अलावा तमाम तकबीरात को कहना, यानी अल्लाह अकबर बोल को जैसा तकबीरात बोलते हैं, पहली तकबीर जो बोलते हैं अल्लाह अकबर बोल के, वैसे ही रुकू में जाते वक्त अल्लाह अकबर बोलती हैं, वो भी अदा करना। ये वाजिबात में से है, ये वाजिबात में से है। अगर जानबूझकर हम ये कर रहे हैं तो हमारी नमाज बातिल। ये वाजिबात भी हम जानबूझकर छोड़ रहे हैं तो हमारी नमाज बातिल। अगर भूल कर हम छोड़ रहे हैं तो वो क्या है, सजदे सहू कर लेने से वो नमाज हो जाती, सजदे सहू कर लेने से वो नमाजें हो जाती। लेकिन जानबूझकर छोड़ रहे हैं, जानबूझकर अगर छोड़ रहे हैं, अमदन छोड़ रहे हैं, तो हमारी नमाजें क्या है, बेकार हो जाएंगी। तो इसीलिए इन वाजिबात को अदा करना भी बेहद जरूरी है। जरा सोचिए, सबसे पहले क्या है, तकबीरात के अलावा यानी तकबीर तहरीमा के अलावा तमाम तकबीरात को कहना, यानी अल्लाह अकबर जो तकबीर बनती है हम और आप, उसके बाद रुकू में जाते वक्त तकबीर बोलती हैं अल्लाह अकबर बोल के, उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोल के बोलती हैं। ये तमाम तकबीरात में आती हैं। उसके अलावा जितने भी तकबीरात हैं, तमाम तकबीरात को अदा करना बेहद जरूरी है। लेकिन हम क्या समझ लिए, सिर्फ क्या इमाम साहब पढ़ ले तो खता, चुप हम हाथ उठाने का, इमाम साहब कर रहे हैं उनके पीछे पढ़ ले, तो ये आदत हमारे पास पाई जाती। इमाम साहब पढ़ ले अल्लाह अकबर समी अल्लाहु लिमन हमीदा, सो इमाम साहब बोल रहे हैं, हम मुक्तदिया ले, उनके पीछे नमाज होती है तो नहीं, आपको भी अदा करना है। ये वाजिबात में से है। तो दूसरी चीज, नमाज के वाजिबात में से दूसरी चीज, ये 8 वाजिबात हैं, 8 वाजिबात हैं। सबसे पहले तकबीर तहरीमा के अलावा तमाम तकबीरात को कहना। दूसरी चीज समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना, चाहे इमाम साहब हो या मुक्तदिया हो, तमाम को कहना है। सिर्फ एक अकेले को कहना नहीं, इमाम साहब अकेले बोल ले तो हमारी नमाज हो जाती है, ऐसा नहीं। जानबूझकर छोड़े, जैसा आप लोग जानबूझकर छोड़े तो आपकी नमाज नहीं होगी। अगर भूल कर आप क्या है भूले, अचानक भूल गया, कहाँ तो ख्याल आया आपको आज क्या रे वहाँ ये पकाता था, क्या है खीर पकी थी, यानी तो क्या है बड़े का गोश्त पका था, वहाँ दावत को जाने का था, भूल कर छोड़े, ऐसा भूला, वहाँ ख्याल जाना की वजह से आपको भूल हो गई, तो वैसी हालत में सजदे सहू कर लेने से आपके वाजिबात पूरे हो जाएंगे, आपकी नमाज हो जाएगी, ये नमाज हो जाएगी। जो चीजें बता रहा हूँ, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना, चाहे मुक्तदी हो या क्या है इमाम साहब हो, दोनों को कहना है। ये दूसरा। और तीसरा वाजिबात, नमाज के वाजिबात में से तीसरी चीज रब्बना वलकल हम्द कहना, रब्बना वलकल हम्द कहना, या रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन नफी, या और भी दुआएं हैं, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, बहुत सारे दुआएं हैं। आपको जो दुआएं याद हैं, दुआओं को पढ़ने की कोशिश कीजिए, दुआओं को पढ़ने की कोशिश कीजिए। या आप क्या है दरमियानी आवाज से बोलिए, यानी तो क्या है आहिस्ता भी बोल सकते हैं, बहुत चिल्लाकर भी नहीं बोलना, बहुत ज्यादा चिल्लाकर भी नहीं बोलना। ज्यादा चिल्लाना गधे की आवाज होती है, ज्यादा चिल्लाना भी गधे की आवाज होती है। बहुत चिल्ला बोलते हैं हमारे पास एक लिए, ऐसा चिल्ला को कि बाजू वाले की नमाज पूरा डिस्टर्ब, वैसा भी नहीं करना है हमें और आपको। मीडियम साइज, ये क्या है मीडियम साइज में बोलना, वसत में जाना, उस तरह से दरमियानी आवाज में बोलने की कोशिश करें। ये तीसरा वाजिबात में से तीसरी चीज। और चौथा वाजिबात में से चौथी चीज जो है रुकू की दुआ पढ़ना। रुकू में दुआ क्या पढ़ती हैं, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, यानी तो क्या है सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति, वहां भी पढ़ सकते हैं आप लोग, वहां भी पढ़ सकते हैं इस दुआ को ज्यादा से ज्यादा। तो जरा सोचिए, 1 मरतबा पढ़ें या 3 मरतबा, या और आपको लंबा करना है तो 5 मरतबा, या 7 मरतबा, या 9 मरतबा, या और भी लंबा करना है तो 11 मरतबा। इस तरह से आप पूरा क्या है लेवल होना, आपका रुकू, आपके सजदे, आपका ठहरना, आपका क्या है दोनों सजदों के दरमियान बैठना, ये तमाम चीजें जो हैं वहां से दरमियान दरमियान यानी पूरा लेवल होना, इत्तेदाल बरतना उसमें। तो इसका खास ख्याल रखें। चौथी चीज। और पांचवी चीज जो है सजदे की दुआ पढ़ना।
सजदे में जब जाती हैं तो वहां भी दुआ है, दुआओं का एहतमाम है। यानी सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 9 मरतबा, 11 मरतबा इस दुआ को पढ़ने की कोशिश कीजिए। और इसी तरह से छठी चीज जो है, 2 सजदों के दरमियान यानी दुआ पढ़ना, दोनों सजदों के दरमियान दुआओं का एहतमाम करना, दोनों सजदों के दरमियान का दुआओं का एहतमाम करना। यानी रब्बिक फिरली, रब्बिक फिरली, रब्बिक फिरली। छोटी दुआ आती है तो छोटी दुआ पढ़ने की कोशिश करें, या बड़ी दुआ आती है आप लोगों को तो अल्लाह मगफिरली वरहमनी वहदीनी वआफीनी वर्जुकनी, इस दुआ को पढ़ लेने की कोशिश कीजिए। वो भी उतना ही होना जितना आपका सजदा हुआ, आपका बैठना भी उतना ही होना, उसके बाद आपका रुकू भी उतना ही होना। इनका क्या है, ख्याल करें, एतदाल बरसें इसमें। और 7वीं चीज, पहले तशहुद के लिए बैठना, पहले तशहुद के लिए बैठना। अगर आप जानबूझकर छोड़ रहे हैं तो ये क्या है, अदा करना होगा आपको, जानबूझकर नहीं छोड़ सकते आप लोग। अगर भूल कर छूट गया तो वैसी हालत में आप क्या है, याद आने पर सजदे सहू कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज हो जाएगी। उस एक रकात को यानी उसको अदा कर लेंगे, सजदे सहू के जरिए से उसे पूरा कर लेंगे। तो ये 7वीं चीज, पहले तशहुद के लिए बैठना। और 8वीं चीज जो है, पहले तशहुद में अत्तहियातु पढ़ना। देखो अत्तहियातु कैसा कहां कहां आ रहा, पहले तशहुद में अत्तहियातु पढ़ना। बहुत सारे लोगों को अत्तहियात की दुआ भी याद नहीं रहती, अत्तहियातु याद भी नहीं कर लेते हम लोग। कैसे कैसे हमारे पास क्या है, हर चीज याद करने के लिए टाइम है, लेकिन नमाज के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है भाई। हम नमाज के दुआओं के लिए हमारे पास टाइम नहीं, हर चीज के लिए ना हम निकालती हैं, कारोबार के लिए निकालती हैं, घर बार के लिए निकालती हैं, कहीं पर जाना है, दोस्तों की शादी मिले तो वक्त निकालती हैं, हर एक के लिए वक्त निकालते रहती हैं हम लोग। लेकिन नमाज के लिए हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं निकालते हम लोग। क्या तो बोले तो क्या तक बोलती, क्या तक बोले तो क्या तक बोलते, तू बड़ा वाले, तू पढ़ ले तो अच्छा ले, खलास, ये बोल छोड़ती हैं, खलास तू जा जन्नत में। मेरे माए और बहनें मोहतरम हजरात, हर एक जो है कुरान की जो आयत है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ताला ने हमारा मकसद, जिंदगी का मकसद बता दिया है। अल्लाह ताला ने, मैंने जिन्नों को और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा किया हूं। अल्लाह ताला ने मकसद बता दिया है तो हमें कोताही करने की क्या जरूरत है। कोताही से परहेज करें मेरे भाइयों, इससे बचें। ये बताने का मकसद यही है कि हमारी नमाजों के अंदर सुधार आए, हमारे नमाजों के अंदर सुधार आए, इसीलिए क्या है, उन्वान रखा गया है। और इसी तरह से नमाज की कौली सुन्नतें और फेली सुन्नतें, ये आखिरी बात है। नमाज के कौली सुन्नतें, कौली बोले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहकर बताया है, बताकर क्या है, यानी जबान से बताया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये करना है, इसे कौली सुन्नतें कहा जाता है। और फेली सुन्नतें बोले तो करके दिखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह से करो, इस तरह से करो, ऐसा करो, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। कौली सुन्नतें 8 हैं, कौली सुन्नतें 8 हैं। तो आइए मैं बताता हूं। सबसे पहले जो है कौली सुन्नतों में दुआए इस्तिफ्ताह पढ़ना, इस्तिफ्ताह पढ़ना यानी क्या, दुआए इस्तिफ्ताह बोले तो सना का पढ़ना, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, इसका पढ़ना। वहां से स्टार्ट हो जाती नमाज, वहां से नमाज स्टार्ट हो जाती है हमारी। इसका खास ख्याल रखें और दुआओं की पाबंदी करें मेरे भाई मोहतरम हजरत, इसकी पाबंदी करें। ये क्या है, कौली सुन्नतों में से है। और दूसरी चीज, पहली रकात में सूरह फातिहा से पहले ताउवुज़ और बिस्मिल्लाह पढ़ें, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आहिस्ता पढ़ें। दोनों आहिस्ता पढ़ना है हमें और आपको, यानी इमाम साहब आहिस्ता पढ़ते हैं या जोर से पढ़ते हैं, वो आप क्या है, आहिस्ता पढ़ें। मुक्तदी, आप मुक्तदी जो हैं वो आहिस्ता पढ़ें, औज़ु बिल्लाह भी आहिस्ता पढ़ें, बिस्मिल्लाह भी आहिस्ता पढ़ें, जो पहले बताया वो भी आहिस्ता पढ़ना है। अगर आप जोर से पढ़ेंगे, जैसा कि मौलाना ने बताया कि पहले ज़माने में जोर से और इधर उधर देख कर नमाजें पढ़ती थी, नमाज पहले वैसा हुआ करता था। लेकिन जैसा ही
नमाज के अंदर सुकून चला गया, डिस्टर्ब होने लगा, जो जैसा ही नमाज क्या है फर्ज हुई तो उस वक्त नमाज क्या है पाबंदी बनाई गई, पाबंदी उसमें बनाई गई। तो क्या है पूरी नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, वैसे हमारी नमाजें होना। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, वैसे नमाजें हमारे होना। बंदा जो है 60 साल नमाज पढ़ा, 60 साल नमाज पढ़ के अल्लाह के पास गया तो अल्लाह ताला जो है वैसे बंदे से कहा कि क्या है तूने नमाजें नहीं पढ़ी। क्या मतलब है इसका? 60 साल नमाज पढ़ के हमारी जिंदगी भर क्या है, 60 साल नहीं है हमारी जिंदगी, इतनी बड़ी नहीं है हमारी। तो जरा सोचिए 60 साल नमाज पढ़ने के बावजूद भी उसकी नमाज उसके मुंह पर देकर मारी जाएगी, तो उसमें क्या वजह थी? कई के वास्ते ऐसा हुआ क्योंकि उसकी नमाज सुकून की नमाज नहीं थी। जैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है वैसे नमाजें उसने नहीं पढ़ी थी। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नमाज उसने नहीं पढ़ी, अपनी मनमानी नमाज उसने अदा की, यानी जैसा चाहा उसने नमाज पढ़ा। यानी रुकू भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नहीं किया, क़ियाम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक उसने नहीं किया, सजदे भी उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नहीं किया। तो उसकी नमाज उसके मुंह पर देकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह ताला उसके मुंह पर मारेगा कल क़यामत के दिन। 60 साल नमाज पढ़ के उसकी नमाज नहीं कबूल हुई, तो जरा सोचो हमारी नमाजें, हमारी नमाजों का हम खुद जायजा लें, हमारी नमाजें कैसा हो रही, जरा खास ख्याल रखें। और एक नबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए हैं, एक क्या है आदमी आता है, एक साहबी या एक आदमी आता है, आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करता है और जाकर मस्जिद नबी में नमाज पढ़ता है और आकर फिर सलाम करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ तुम नमाज फिर दोबारा पढ़ो, यानी इरजी फसल्ली फइन्नक लम तुसल्ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ तुम्हारी नमाज अदा नहीं हुई फिर नमाज पढ़ के आओ। क्या मतलब है इसका? क्योंकि जब वो नमाज पढ़ रहा था तो ना उसके रुकू सही हो रहे थे ना सजदे सही हो रहे थे। तो जरा सोचो, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से कहा, साहबी से कहा। तो हमारी नमाजों का जरा हम और आप जायजा लें, कैसी हमारी नमाजें हो रही हैं, हम नमाज क्या सही से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, उसका हम जायजा लेना चाहिए हमें और आपको, हमारा इसका खास ख्याल रखें। और तीसरी चीज यानी तीसरी सुन्नतें जो कौली सुन्नतें हैं उसमें से तीसरी चीज जो है आमीन कहना। इमाम साहब जब नमाज पढ़ाते हैं गैरिल मगज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन, तो इमाम साहब को चाहिए कि आमीन कहें। इमाम साहब भी ऐसा बनाए आप लोग जो आमीन कहने वाले हों, जो आमीन कहने वाले हों। तो यहाँ पर आमीन का भी आया है, ये सुन्नतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, करके दिखाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कह कर दिखाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जरा सोचो आमीन से कौन चिढ़ते हैं? यहूद चिढ़ते हैं, यहूद और नसारा जो है चिढ़ते हैं आमीन कहने से, हमारे सलाम से और आमीन से वो क्या है चिढ़ जाते हैं, उनको गुस्सा आना चाहिए। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर हम और आप देखते हैं कि हमारे मुसलमान तबके के अंदर अक्सर जो है आमीन कहने वाले पर ये गलत नजर से देखते हैं। आमीन जोर से बोला था कि नहीं बोला? आमीन बोलने वाला को क्या बोलते हैं? क्या तो एक बोलते हैं शैतान का बच्चा है ना, शैतान का बच्चा बोलते हैं। शैतान के बच्चे तो असल वो हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, कौली सुन्नत है ये आमीन कहना। अगर आमीन हम और आप नहीं कहेंगे, आमीन हमारी आमीन और फरिश्तों की आमीन अगर टकराएगी तो उस इंसान के जो है जितने भी सगीरा गुनाह हैं पूरे के पूरे अल्लाह ताला माफ कर देगा। आमीन कहने की वजह से फरिश्तों की आमीन और हमारी आमीन दोनों टकरा गई आपस में, तो अल्लाह ताला हमारे पूरे सगीरा गुनाहों को माफ फरमाएगा। जरा सोचो, सगीरा गुनाह माफ हो रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है, कितनी खुशनसीबी की बात है। लेकिन हम क्या है, चिढ़ते रहते हैं, हमारे से अक्सर मुसलमान चिढ़ते रहते हैं। जरा सोचो, इसके पर गौर करें। ये चौथी चीज। और पांचवी चीज, हर नमाज की पहली और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के साथ कोई दूसरी सूरत लगाना, सूरह जम लगाना, सूरह फातिहा के साथ दूसरा सूरा पढ़ना पहली और दूसरी रकात में। यानी जोहर की 4 रकात हम और आप नमाज पढ़ रहे हैं,
مثال کے طور پر ظہر کی 4 نماز ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں الحمدللہ سورہ کے ساتھ کوئی دوسرا سورہ آپ کو یاد ہے، یعنی قل اللہ کا سورہ یاد ہے، یا انا اعطینا کا سورہ آپ کو یاد ہے، یا کوئی بڑی سورت آپ کو یاد ہے، تو اس سورت کو لگانا، اس سورت کو پڑھنا پہلی 2 رکعت میں، پہلی اور دوسری رکعت میں، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں وہ کیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لے تو کافی ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ، اگر کوئی پڑھ لیا کوئی حرج کی بات نہیں، اگر کوئی پڑھ لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور اسی طرح سے 5ویں چیز، پہلے تشہد میں التحیات کے بعد درود پڑھنا، پہلے تشہد میں التحیات کے بعد درود پڑھنا۔ پہلے تشہد میں بیٹھے آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی، پہلے تشہد میں التحیات پڑھ رہے ہیں، دوسری یعنی وہاں پر کیا ہے، درود بھی پڑھنا، وہاں پر درود شریف بھی پڑھنا۔ بہت سارے بھائی حضرات جو ہیں التحیات پڑھتی ہیں ڈائریکٹ ٹوٹ جاتی ہیں، التحیات پڑھتی ہیں ڈائریکٹ ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کیجئے آپ، کیونکہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے پہلے تشہد میں التحیات کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد اٹھیں۔ اور چوتھی رکعت میں، ظہر کی چوتھی رکعت میں، پہلے رکعت میں یعنی آخری تشہد میں جو ہے التحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اس کے بعد دعائے معصورہ ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی، اس کے بعد دعائے معصورہ ہیں۔ یہ کیا ہے، نماز کی قولی سنتیں ہیں، پہلے تشہد میں التحیات کے ساتھ درود پڑھیں، یہ پانچویں بات۔ اور 6ٹھی بات جو ہے، آخری تشہد میں درود کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں۔ دعائے معصورہ بولے تو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور دعائیں آتے ہیں تو اور دعائیں پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یاد ہے تو پڑھیے، اگر یاد نہیں ہے تو اللہم انی ظلمت پورا پڑھ کر کیا ہے وہیں پر آپ سلام پھیریے، وہیں پر سلام پھیریے۔ وہاں پر دیکھا جاتا ہے اکثر امام صاحب کیا ہے تشہد کی دعائیں بہت سارے پڑھتے رہتے ہیں، تو وہاں مقتدی کو بیزار آتے ہیں، وہاں پر مقتدیوں کو بیزار آتے ہیں، کہوں مولانا سلام پھرتی کی یتا دیر بٹے ہمنا کو، بہت جنا خیال ہوتے ہیں وہاں پر۔ اللہم انی ظلمت ختم ہونے کے بعد سوچتے رہتے ہیں کہوں مولانا کا ہوتے کی ابھی کتنے دیر لمبی پڑھاتی رہے وائنو، ان کی مسجد کو جانا نہیں کرتی بہت جنے ہے نہیں، سوچتے رہتی وہاں کیا کیا پڑھتی کی نو، وہاں چپ بیٹھتی خاموش، ہمیں کیا تو کیا ہے التحیات ہوا، اللہم صلی اللہ ہوا، اللہم انی ظلمت ہوا، اس کے بعد کیا پڑھنا میں خالی سوچتے رہتی وہاں دوسری دعائیں پڑھو، دوسری دعاؤں کی پابندی کرو، جیسا بھی دعائیں آپ کو یاد ہیں ان دعاؤں کی پابندی کرنا ہے ہمیں اور آپ کو۔ کیا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہاں پر دعائیں قبول ہو جاتی ہیں آپ کی، وہاں پر اکثر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ویسے جگہ دعاؤں کی پابندی کیجئے، آپ نے اولاد کے لیے دعا کیجئے وہاں پر رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا، نہیں تو ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، نہیں تو کیا ہے دنیا اور آخرت کی حفاظت کے لیے اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، ایسی دعاؤں کی پابندی کیجئے وہاں پر، اپنے آل اولاد کے لیے دعا کیجئے، اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کیجئے۔ لیکن اکثر وہاں کیا ہے ہمیں سوچتے رہتی ہیں مولانا سلامت نہیں پھر رہے، جب تک آپ امام صاحب جو ہے دعائیں پڑھ رہے ہیں آپ بھی دعاؤں کی پابندی کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ویسے جگہ میں آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے کا وقت ہے، وہاں پر نماز کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعاؤں کی پابندی کیجئے۔ اکثر وہاں پر ہمارے پاس نہیں ہوتا، وہاں پر اکثر دعائیں معصورہ ہونے کے بعد بیٹھتی خاموش، نہیں تو کیا ہے کیا تو یاد کرتی ہیں، میں کیا گیس پہ کیا تو رکھ گئی تھی کیا کرتا، خواتین رہے تو گیس پہ کیا تو رکھ گئی تھی کیا، نہیں تو کیا ہے مرد حضرات رہے تو کیا تو میں چابی ڈالوں کی نہیں کی دکان کون چوری کر لے جاتے کی، یہ خیال ہمارا رہتے ہوتے نہیں، اکثر ہو رہا ہے ہمارے پاس ہی، یہ کمیاں ہیں ہمارے پاس، اسے کیا ہے ہمیں اور آپ کو نبھانا ہے، اور مکمل نماز کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنا ہے، اس طرح سے نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ آپ کی نماز میں جو ہے آپ کی نمازیں پورے مکمل جو ہے قبول بھی کرے گا اللہ تعالیٰ، اور کل قیامت کے دن آپ کی نمازیں قابل قبول بھی ہوں گی، کل قیامت کے دن قابل قبول بھی ہوں گی آپ کی نمازیں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور 7ویں چیز، فجر اور مغرب
वो ईशा की पहली 2 रकातों में जहरी क़िरात करें, यानी जोर से पढ़ें। फजर में, मगरिब में पहली 2 रकातों में, फजर में, मगरिब में और ईशा में पहली 2 रकातों में जोर से पढ़ें। यानी इमाम साहब पढ़ रहे हैं, इमाम साहब कोई इमाम बन रहे हैं आप में से, तो वो जोर से पढ़ाएं। जैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया वैसे हमें नमाज को अदा करना है। हम मनमानी कर रहे हैं, यानी मगरिब में जोर से पढ़ना है 2 रकातें, वहां पर हम आहिस्ता पढ़ रहे हैं तो जमात बनाकर आहिस्ता पढ़ रहे हैं तो नमाज नहीं, जोर से पढ़ना। वहां पर आपके पर्दे का एहतमाम है, आपके घर में है खवातीन, तो वहां पर एक इमाम बन रहे हैं तो वहां पर जोर से पढ़िए नमाज। और इसी तरह हम और आप देखते हैं इमाम साहब जो है अक्सर मस्जिदों में यही होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है तो वैसे हमें करना है। वहां पर मैं क्या है अपनी मनमानी चला रहा हूं तो नहीं, वहां पर मैं क्या है मगरिब, फजर और इशा में 2 रकातों में, पहले 2 रकातों में मैं क्या कर रहा हूं, नहीं ले मेरी मनमानी नमाज पढ़ता हूं बोले तो नहीं चलता, मेरी बात नहीं चलती। वहां मैं आहिस्ता पढ़ता हूं लेकर को सब नमाज है, सब मुक्तदा कुछ ज़ोहर और असर की तो पढ़ाया तो नहीं चलता, क्योंकि अल्लाह ताला वैसी नमाज कबूल नहीं करता। क्योंकि हमारी नमाज किसके मुताबिक नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हमारी नमाजें नहीं है वहां। तो इसका भी खास ख्याल रखें, इसका भी खास ख्याल रखा जाए। और इसी तरह से 8वीं चीज में क्या है, ज़ोहर व असर की 4 रकातों में और मगरिब और इशा की आखिरी 2 रकातों में सिर्री क़िरात करें, यानी आवाज को बारीक करें। जैसा कि हम और आप ज़ोहर और असर में आहिस्ता पढ़ती, इमाम साहब 4 रकाता आहिस्ता पढ़ती, और मगरिब और इशा की आखिरी रकातों में यानी 2 रकात मुकम्मल होने के बाद तीसरी और चौथी रकात में जो है आहिस्ता ही पढ़ते हैं इमाम साहब, वैसे आपको भी अदा करना है, वैसे आपको भी अदा करना है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह कर बताया है। क्या है, कह कर बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये कौली सुन्नतें हैं, ये 8 कौली सुन्नतें हैं, इसका भी खास ख्याल रखा जाए। और इसी तरह से नमाज की फेली सुन्नतें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर कर दिखाया, यानी बोल कर नहीं कर कर दिखाया, कैसे करना है, प्रैक्टिकल तौर पर कैसे करना है, वैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। वो 9 बातें हैं, वो 9 बातें हैं। सबसे पहले नमाज में 4 मुकाम पर रफ़ा-ए-देन करना, 4 मुकाम पर रफ़ा-ए-देन करना, ये सुन्नतें हैं। अक्सर ये भी क्या है हमारे पास डगमगाती, कहाँ करना की पहले एक बार अल्लाह अकबर बोले तो रफ़ा-ए-देन करे तो खत्म हुआ हमारा, पहले एक बार रफ़ा-ए-देन करे तो गलत हो जाती है हमारी बात, उसके बाद कौन करते ज नहीं, हाथ उठाते ज नहीं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मुकामात पर रफ़ा-ए-देन करने का हुक्म दिया है। सबसे पहले अल्लाहु अकबर बोल के हाथ उठाते, अल्लाह अकबर बोल के हाथ उठाते, रफ़ा-ए-देन करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसे छोड़ रहे हैं तो हम क्या गुनहगार हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखो मामूली सुन्नतों को हम लेती हैं, कौन बताती कि कौन नहीं की, कहां सी मन गढ़त बातें आती कि क्या है कि कौन सी भी लकाब क्या है, दिन रात भर क्या है नमाजें पढ़ना, रात भर क्या है, दिन भर क्या है, कौन से तो कारोबार छोड़ को मस्जिद में अल्लाह 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 का तो नहीं चलता। अल्लाह ताला इसका हुक्म भी नहीं दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका हुक्म नहीं दिया। पूरा छोड़ को वह काम धंधा सब छोड़ को खाली मस्जिद पकड़ को बैठ, नहीं तो क्या घर में क्या अल्लाह अल्लाह कर लेते बैठ कर अल्लाह नहीं बोले है। जैसा ही, क्योंकि कुरान मजीद में आयत भी है फंतशरू फिल अर्ज़, जैसा ही जुमा के लिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, जैसा ही ईमान वालों से अल्लाह ताला मुखातब होकर वहां फरमाया, जैसा ही जुमा के लिए आजान दी जाती है तुम कारोबार को छोड़ दो, मस्जिदों की तरफ दौड़ो, मस्जिद में हाजिर हो जाओ, जमात के साथ यानी नमाज पढ़ो, खुतबा सुनो, जमात के साथ नमाज पढ़ो, उसके बाद वहां नको बैठो। कहते अल्लाह ताला फंतशरू फिल अर्ज़, जैसा ही नमाज खत्म हो जाए तुम अपने जमीन में यानी पूरी जमीन में क्या है कारोबार के लिए फैल जाओ। फैलना है हमें और आपको, लेकिन हमें क्या करती है, बहाने बनाती, मौलाना खाली नमाज पढ़ो कहीं ले रहे हैं, नमाज पढ़ेंगे, पेट को कौन बाती है, मस्जिद में बैठे तो पेट को बाते अल्लाह नहीं, कारोबार करो बोले अल्लाह ताला कारोबार करो बोले। लेकिन क्या है, जो भी अल्लाह के अहकामात हैं उसे अदा करने के बाद
उस पर तवज्जो देना है हमें और आपको। लेकिन हमें क्या कर रहे हैं, पूरा जिंदगी का मकसद क्या है, कारोबार बनाने बैठे, दुनिया 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 दुनिया। बच्चे माँ बाप, पूरा माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों के ऊपर जिंदगी लगाते हैं। माँ बाप क्या करती हैं, बच्चों के ऊपर जिंदगी लगाते रहती हैं। अभी छोटा बच्चा भी नहीं रहता, उसे पढ़ाने का शौक वहां से शुरू हो जाते माँ बाप का। उसके बाद जैसा जैसा बढ़ते बच्चा, तो उसे क्या है, जैसा जैसा उसे क्या है, स्कूल के अंदर कौन सा तो एक ये मिला तो उसे क्या है, बढ़ाने का सोचती, वो करना मेरा बच्चा, ये करना, हर एक से आगे बढ़ना, खाली वही सोच। देखो सहाबा इकराम कैसे थे, अंबिया कैसे थे, उनके ऊपर भी क्या है, नमाजें फर्ज थी। उन्होंने भी क्या है, अपने बच्चों को ये तालीम नहीं दिए, हाँ, उन्होंने भी तालीम नहीं दिए। वह अमुर अहलक बिस्सलात बोलते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को हुक्म दे रहे हैं, वह अमुर अहलक बिस्सलात, सबसे पहले अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, खुद भी पढ़ो और अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। लेकिन हमें क्या है, घर वालों को बताए तो जा रे भाई बहुत शाना है, जा तू, है हमारे में भी वैसे नहीं है, है बोलती बोल को सुनाती। जरा सोचो इसके बारे में, क्योंकि एकले जन्नत में नहीं जाने का है, तमाम को क्या है, जन्नत में जाने का है। इसका खास ख्याल रखें और एक एक बारी की बात पर जो है अमल करने की कोशिश करें हम और आप। ये सुन्नतें हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, 4 जगहों पर हमें और आपको क्या है, रफ़ा-ए-दन करना है। बारीक बारीक सुन्नतों को लेती हूँ, कौन सा तो रहा तो सुन्नत लेती हूँ, क्या है, चेहरा छोड़े तो खलास सुन्नत अदा हुई, क्या चेहरा छोड़कर क्या है, ऊपर टोपी डाले सुन्नत अदा हुई। हमें सहराज फिरते कि नहीं, नमाज छोड़ने का पूरा नहीं जी, सुन्नत अदा करें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा छोड़ो कहीं, सुन्नत अदा करें तो हुआ, यहाँ छोड़ती पूरा नमाज में, कीजिए बोलना, यहाँ छोड़ते रहती हैं हम लोग, यहाँ छोड़े चलते। हमारी खुद की नमाज बनाई हुई है, ये खुद रफ़ा-ए-दन नहीं करना, ये खुद की नमाज है। यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मुकामात पर जो है रफ़ा-ए-दन करने का हुक्म दिए हैं, तो हमें क्या है, वैसा ही करना है जैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। सबसे पहले अल्लाहु अकबर, जो तकबीर बांधती है, रफ़ा-ए-दन करती हम और आप रफ़ा-ए-दन करते हैं। उसके बाद रुकू में जाते वक्त अल्लाहु अकबर बोल के जाना, ये दूसरी तकबीर। रुकू में जाते वक्त हाथ उठाकर रफ़ा-ए-दन करना। उसके बाद क्या करती है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, यहाँ भी हाथ उठाना। और इसी तरह तीसरी रकात में जब ज़ोहर, असर या मगरिब या इशा की पढ़ रहे हैं, तो क्या है, चौथी रकात में उठने के बाद, यानी सजदे तशहुद के बाद उठते हैं ना तीसरी रकात में, तो वहां पर अल्लाहु अकबर। ये 4 मुकामात पर हमें और आपको रफ़ा-ए-दन करना है, 4 मुकामात पर हमें और आपको रफ़ा-ए-दन करना है। अगर नहीं कर रहे हैं तो हम गुनहगार हैं, हम गुनहगार हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ रहे हैं। तो ये वाकयात जो बताया मैं बाहर के, तो आपको समझने के लिए बताया, आपको समझने के लिए बताया। तो ये रफ़ा-ए-दन 4 मुकामात पर हमें और आपको करना है। जल्दी जल्दी बोलो देखना कहाँ कहाँ करना। तकबीर तहरीमा करते वक्त 1 बार, उसके बाद रुकू में जाते वक्त 2 बार, उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते वक्त 3 बार, और चौथी क्या है, तीसरी रकात में ज़ोहर की हो या असर की हो या मगरिब की हो या ईशा की हो, तीसरी रकात में जा रहे हैं, तो वहां पर अल्लाहु अकबर बोल के हाथ बांधेंगे। सजदे के तशहुद के बाद उठती नहीं, तीसरी रकात में वहां अल्लाहु अकबर बोल के हाथ बांधेंगे। ये 4 मुकामात पर हमें और आपको रफ़ा-ए-दन करना है। ये करके बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साहबा के सामने ठहर कर करके बताए। लेकिन हमें क्या करते हैं, उसे भी ठुकरा रहे हैं। एक बार करे तो खलास पूरी नमाज वेले रफ़ा-ए-दन नहीं करने का हो रहा है नहीं, तो इसका खास ख्याल रखें। और दूसरी बात, सीने पर हाथ बांधना, सीने पर हाथ बांधना, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने पर हाथ बांधने का बताया है। उसके अलावा जो नाफ के नीचे जो हदीस हैं, ये तमाम जो है, ये क्या है, हदीस से साबित नहीं है, ज़ईफ़ हदीस है, ज़ईफ़ हदीस। देखिए जरा सोच कर देखें हम और आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू दाऊद की, इब्ने खुज़ैमा की, निसाई की, ये तमाम जितने भी अहादीस हैं, वो पूरे सीने पर हाथ बांधने की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर हाथ बांधने के, यहाँ जरा ख्याल कीजिए आप लोग, जरा सोचें, औरत कहाँ बांधती हाथ, सीने पर। औरत कहाँ बांधती,
सीने पर बांधनी बोलती हैं औरतों को। अदम्या कहाँ बोलती है? नीचे बंधो। अदम्या कहाँ बोलती है? नीचे बंधो। यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों में फर्क नहीं बोले, नमाज पढ़ने में दोनों को फर्क नहीं बताया। यहाँ औरतों को भी वही तरीका है, मर्द को भी वही तरीका है, दोनों को वही तरीका बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हाथ दोनों को सीने पर ही बांधना है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग मसला लेते हैं हम लोग। यहाँ पर भी हमारे पास मसला अलग आते हैं, उन्हें नीचे बांधना, हमें क्या ऊपर बांधना। जरा सोचें इसके बारे में, खास ख्याल करें, क्योंकि तमाम को मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने पर जितने भी हदीस मौजूद है वो पूरे सीने पर हाथ बांधने की हदीसें हैं। यानी यहाँ से लेकर बहुत ज्यादा सीने पर हाथ बांधना बोले तो बहुत ज्यादा, ऐसा गले पर भी नहीं ले जाना, ऐसा फांसी ले जैसा, ऐसा ऐसा ठहरे तो क्या भी दिखता भी नहीं नीचे का, मुझे क्या भी दिखता नहीं, ऐसा तिरछी नजर से देखना पड़ते मैं ऐसा। तो उसके वास्ते जो है सीना बोले तो यहाँ से लेकर इस तरह से बोम्बी के ऊपर का हिस्सा, तो यहाँ इतना इस तरह से हाथ बांधने की कोशिश कीजिए। और क्या है तरीका इंशाल्लाह आपको बाद में बताया जाएगा। और इसी तरह से तीसरी सुन्नत जो है, फेली सुन्नत, सजदे की जगह देखना। यानी हम ठहरे वक्त, क़ियाम करते वक्त हमारी निगाह जो है जहाँ पर हमारा सजदा होते वहाँ हमारी निगाह रहना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसा देखती हैं घड़ी, कहाँ टाइम है कि नहीं के देखते हैं, ख्याल होते हैं हमारा, कभी कभार वो वैसा चलते हैं, लेकिन ऐसा देखना नहीं है, बिल्कुल मना है इस्लाम में। बहुत सारे लोग देखते रहते हैं बार बार ऐसा घड़ियाँ देखने का। नहीं तो मौलाना ने बताया कि मोबाइल आया तो पटने क्या काट के देखने का, कट कर रखने का, हाँ ये करते रहते हैं। ये जासूस सिर्फ मौलाना को ठका सकते हैं आप लोग, अल्लाह को थका नहीं सकते, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, इसका खास ख्याल रखें। बहुत सारे होते हैं ऐसे, मौलाना को थके के लिए बेकार करते हैं ऐसे जना, इसका भी खास ख्याल रखा जाए। तो सजदे की जगह क्या है? निगाह होना, ये तीसरी सुन्नत है। और चौथी सुन्नत, रुकू में दोनों हाथों को घुटनों पर रखना। रुकू में दोनों हाथों को घुटने पर रखना, इस तरह से फैलाकर, यानी रुकू में इस तरह से घुटनों पर क्या है दोनों हाथों को रखना। चुप क्या है, मैं ऐसा छोड़ को ठहर दूंगा तो नहीं, ऐसा हाथ रखना। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल कर भी बताया जाएगा इंशाल्लाह। ये घुटनों पर रखना, ये चौथी चीज। और पांचवी चीज जो है, रुकू में सर कमर के बराबर रखना और कमर बिल्कुल सीधे रखना, कमर बिल्कुल सीधे रखना। जैसा कि मैंने पहले बताया, तो कमर और ये सर दोनों क्या है, बिल्कुल सीधा होना, दोनों बराबर होना। जब बराबर होगी तो आपकी निगाह जो है सजदे की जगह होगी। वहां भी क्या है, चालबाजी करती है हम लोग, वहां भी चालबाजी रहती है हमारी। कहाँ देखती है? नीचे देखते रहती है हम लोग, पैरों के पास। बहुत जने क्या है, झुके के बाद क्या करती हैं, ऐसा नीचे देखती हैं, हाथ वहां देखना जहां पर सजदा हो रहा है वहां हमारी निगाह रहना। कहे तो कमर और सर सीधा होते वहां पर, इसका भी खास ख्याल रखा जाए। और इसी तरह से छठी चीज, सजदे में दोनों बाजुओं को पहलू से और पीठ को रानों से दूर रखना। सजदे में दोनों बाजुओं को बोले तो ये हाथों को, ये बगल जो रहते, बगल के जो हैं, ये दोनों हाथों को क्या है, दूर रखना। ये पीठ के इस तरह से ऐसा बहुत जना लगा को, यानी तो नीचे टेक को रखते हैं, ऐसा हाथों को ऐसा सजदा करते वक्त ऐसा नमाज पढ़ती हैं, दोनों हाथों को टेकना, ये इसको टेकते रहते हैं। ये पूरा क्या है, खुला रहना। चाहे तो एक छोटा बकरी का बच्चा उसमें से गुजरना चाहे तो जाना उसमें से, वैसा क्या है हमारा हाथों को उठाकर रखना, हाथों को उठाकर रखना जो है पहली सुन्नत, उसके बारे में बता रहा था। नमाज अज़ा की वजह से जो है इसको रोक दिया गया था। तो आइए छठी चीज़ हम और आप जो है सुन रहे थे, तो सजदे में जो है दोनों बाजुओं को पहलू से और पेट को रानों से दूर रखना। जिस तरह मैंने बताया कि क्या है, ज़मीन पर जब हम और आप सजदा करते हैं तो सजदा करते वक्त बहुत सारे ख़वातीन को देखा जाता है या मर्द हजरात को देखा जाता है कि अक्सर जो है पूरा हाथ को ही ज़मीन पर टेक देते हैं, ज़मीन पर टेक कर सजदा करते हैं, जिस तरह जो है जानवर वगैरह करते हैं।
कुत्तों को देखा जाता है कि कुत्ता जो है सामने के पैर फैलाकर बैठता है, सामने के पैर फैलाकर जो है बैठता है, उस तरह से हम और आप सजदा करते हैं तो ये सजदा मुकम्मल नहीं होगा, आपकी नमाज नहीं होगी। तो इसीलिए इन चीज़ों को जो है ख्याल करें, इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अपने हाथों को जो है जब ज़मीन पर रखते हैं सजदे के लिए तो इन हाथों को जो है ज़मीन से उठाएं, ज़मीन से उठाना है। और क्या है, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है कि चाहे तो एक बकरी का छोटा सा बच्चा जो है आपके गुजरना चाहे तो आपके बगल के यानी आपके सजदों के जो सजदा कर रहे हैं उसके नीचे से, पेट के नीचे से आहिस्ता से गुजर जाए, उस तरह से सजदा होना हमारा, जब जाकर हमारे नमाजें जो है काबिल कबूल होंगी और हमारे सजदे रुकू सही हो जाएंगे, रुकू सजदे वगैरह सही होंगे। लेकिन वहाँ पर भी हमें क्या है, उसे मुकम्मल नहीं करते, मुकम्मल अदा नहीं करते। ज़रा उसका ख़ास ख्याल रखें और ज़मीन से बिल्कुल क्या है अपने हाथों को उठाने की कोशिश करें, इस तरह से सजदा करने की कोशिश करें। तो ये ख़वातीन के अंदर आमतौर पर आदत पाई जाती है, इससे परहेज़ करें। और सातवीं चीज़, सजदे में दोनों कोहनियों को ज़मीन से दूर रखना, सजदे में दोनों कोहनियों को ज़मीन से दूर रखना, जैसा कि मैंने बताया, ये सातवीं चीज़। और आठवीं चीज़, दो सजदों के दरमियान और पहले तशहुद में बाएं पाँव पर बैठना और दाएं पाँव को खड़ा करना। दूसरे तशहुद में, ये पहले तशहुद में, पहले तशहुद में जो है किस तरह से बैठना है, आप 2 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो ये पैर जो है खड़ा करेंगे, ये पैर खड़ा करेंगे, इस पर बैठेंगे, दाएं पैर पर बैठेंगे और दाएं पैर को खड़ा करेंगे 2 तशहुद में। दूसरे तशहुद या पहले तशहुद में 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो पहले तशहुद में, अगर आखिरी तशहुद में है तो उसके बारे में क्या है लास्ट में आता है। तो पहले तशहुद में क्या करेंगे, दाएं पैर को खड़ा करेंगे, यानी उंगलियां किबला रुख होंगी, उंगलियां किबला रुख होंगी और इस पैर पर जो है इस पैर को बिछाकर इस पर बैठेंगे, दाएं पैर पर बैठेंगे। तो इस तरह से क्या है नमाज, ये पहले तशहुद में इस तरह से बैठना है हमें और आपको। तो हम अक्सर क्या करते हैं, ये पैर को क्या है नीचे छोड़ देते हैं, उंगलियां हमारा किबला रुखी नहीं होती। अगर मजबूरी है तो वो बात अलग रही, मजबूरी है, कोई उज़्र है तो उसका मसला अलग है, तो वैसी हालत में आप कैसे भी बैठें चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन बगैर किसी उज़्र के हम और आप इस तरह से नहीं करेंगे। यानी उंगलियों को क्या है किबला रुख करेंगे, दायां पैर यानी सीधा पैर खड़ा करेंगे और उंगलियां जो है किबला रुख होंगी, उंगलियां किबला रुख होंगी और बाएं पैर पर यानी लड्डे पैर पर हम और आप बैठेंगे उस पर। इस तरह से तशहुद में बैठना है हमें और आपको। और आखिरी तशहुद में, आखिरी तशहुद में बाएं पैर को, दाएं पैर को, ये दाएं पैर को जो है खड़ा करेंगे, दाएं पैर को खड़ा करेंगे, उंगलियां किबला रुख होंगी और बाएं पैर को यानी दाएं पैर के नीचे से इसे बाहर निकालना है, दाएं पैर के नीचे से, दाएं पैर के नीचे से बाहर निकालेंगे और सुरैन पर बैठेंगे, नीचे जमीन पर सुरैन पर बैठेंगे। इसका खास ख्याल रखें, ये चंद चीजें थी। और एक आखिरी बात, तवर्रुक करना, इसी को कहा जाता है, यानी पैर बाहर निकालना, पैर बाहर निकालना, इसी को तवर्रुक कहा जाता है। इस तरह से हम और आप करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे नमाज के शरायत, नमाज के अरकान, नमाज के वाजिबात, नमाज की कौली सुन्नतें, फेली सुन्नतें तमाम जो है इंशाअल्लाह पूरी मुकम्मल होंगी। और क्या है, नमाजें भी हमारे जैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, वैसी हमारी नमाजें इंशाअल्लाह होंगी। क्योंकि नमाज में से कोई भी एक छूट जाए तो नमाज दुरुस्त हो जाएगी। सुन्नतें हैं जो हैं, कौली सुन्नतें और फेली सुन्नतें, अगर उनमें से कोई चीज़ छूट जाए तो नमाज आपकी दुरुस्त होगी। लेकिन क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आती है तो मुसलमान, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ दे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो किसी सुन्नत को छोड़ना मुसलमान के लिए जायज़ ही नहीं है। तो ज़रा सोचो हम और आप, कैसे कैसे सुन्नतें हमसे छूट रही हैं, कैसी हमारी नमाजें हो रही हैं,
اس کا خاص خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہماری جتنے بھی خطائیں ہوئی ہیں ہم سے نماز کے اندر یا نماز کے باہر جتنے بھی ہم سے خطائیں ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو درگزر عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.